Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to another session on the Vedantu US channel. This is for KPY SX program, and this can be utilized by anybody who is preparing for JEE Advanced, NEET, as well as for Chemistry Olympiads. In today's session, I will be discussing this in continuation of optical isomerism. We will be having few sessions on optical isomerism because one of the most key areas of organic chemistry is isomerism, and a little misunderstood topic is optical isomerism. So we'll be discussing something known as the axial chirality today. You might have come across this particular thing in many different forms, that atrope isomerism or chirality without chiral centers. So we'll try to understand compounds in which such a chirality exists, and what are the various features, or how do they look like, or what are the different examples of them. ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड एक्सियल कायरलिटी होती क्या है? सबसे इजी तरीका है इसको समझने का कि अगर आप एक कायरल सेंटर लेते हो, अगर आप एक मॉलिक्यूल को कायरल बोलते हो तो बोलते हो कि उसके अंदर एक कायरल सेंटर है. जैसे कि अगर कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आप बोलते हो कि वो कायरल सेंटर है. तो कायरल सेंटर का मतलब ये होता है कि एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट becomes a chiral center. Sorry. But there are certain molecules जिनमें ये chiral center नहीं होता है, yet the molecules are chiral. So a special case of chirality in which a molecule is not having a chiral center but is chiral. और ये chiral होते क्यों है? क्योंकि chirality के लिए chiral center होना जरूरी नहीं है. What is necessary is absence of the elements of symmetry which I discussed in the last session. and ये elements of symmetry कौन से होते हैं? plane of symmetry, center of symmetry, इनको absent होना होगा. axis of symmetry हो सकता है, plane of symmetry, center of symmetry नहीं होना चाहिए. अगर ये present है तो वो symmetric entity हो जाएगा, but अगर ये absent है तो molecule chirality को follow करना शुरू करेगा. So it is imperative that you understand what this particular feature is. So axial chirality is a feature of a molecule in which a molecule does not possess a chiral center, yet it is chiral. और ये chiral होते क्यों हैं? Because such molecules possess an axis of chirality. एक ऐसा axis जिसके about groups का स्पेशल ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है, और इनके जो मिरर इमेज होते हैं वो इनके ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं. सो सच अ मॉलिक्यूल possesses an axis of chirality which is an axis about which set of groups are held in a spatial arrangement that is not superimposable on its mirror image. So इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप जानते हो जिसको हम बोलते हैं एलीन. अब ये देख सकते हो कि अगर मैंने एक एलीन लिया तो एलीन में ये जो एक्सिस है which passes from a carbon which passes from carbon double bond carbon, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनसे जो एक्सिस पास कर रहा है वो हो जाता है कायरल और कायरल एक्सिस. ओके, और एक्सिस ऑफ कायरलिटी. इन मॉलिक्यूल्स में भी हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ R and S आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ डिस्कशन फॉर टुडे. आज की डिस्कशन में हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि R and S उनमें डिफाइन कैसे करते हैं. वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे R and S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूल्स which have which possess axial chirality. आज के सेशन में हम देखेंगे कि axial chirality किन में होती है. So we start from, so सबसे पहले एग्जाम्पल जो है that is of allenes. Okay, ये किन तरह के कंपाउंड्स में होती है? तो हमें मालूम है एलीन्स में होती है, और बहुत लोगों को मालूम होता है बाइफिनाइल में होती है. ये तो बहुत कॉमन होता है, मतलब somebody who has done a decent bit of general organic chemistry और isomerism किसी ढंग की किताब से पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने एलीन्स एंड बाइफिनाइल्स तो पढ़ा होगा, but a lot of people are not aware of some other categories.
like spiranes or spiroalkanes, alkylidene cycloalkane, ये क्या होता है हम देखेंगे आगे, oximes and adamantane. Oximes, adamantane and alkylidene cycloalkanes, ये a lot of places these things are not taught, a lot of people do not know it, but these compounds possess axial chirality. So let's try and understand कि ये दिखते कैसे हैं पहले. So एलीन्स तो मैं आपको बताया कि they are cumulated alkenes, उनमें डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन के ऊपर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, and these are called allenes. Conjugated क्या होता है कि double bond is separated by another double bond by a single bond. Biphenyl is two phenyl rings connected by a single bond, और ये single bond के बाद ये two phenyl rings rotate कर सकते हैं, और ये rotate इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन में, इनके बीच में रिपल्शन होता है. Third, this is called a spiroalkane. You can see there are two cycloalkyl units which are fused with each other, और ये फ्यूज होने के कारण ये दो डिफरेंट प्लेन्स में रहते हैं, एंड इनमें एक पैरेलल एक्सिस होता है. एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन, एक साइक्लोएल्केन ले लीजिए जैसे साइक्लोहेक्सेन, एंड उसमें एक डबल बॉन्ड लगा दो. उस डबल बॉन्ड के पैरा पोजीशन को आप ले लीजिए, पैरा पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दीजिए, and that becomes a alkylidene cycloalkane. Then we have oximes. Oximes सभी को मतलब जिनको अगर नहीं मालूम है तो ये जान लो कि oximes are created when a carbonyl compound reacts with hydroxylamine, NH2OH के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीम बनते हैं. Oximes आपने शायद पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जहां पर कि हम पढ़ते हैं सिन एंड एंटी, तो ऑक्सीम्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकती है अगर वो एक साइक्लोएल्काइल सिस्टम में प्रेजेंट है तो. एंड द लास्ट वन इज एडमेंटेन. एडमेंटेन्स लुक लाइक टू 6 मेंबर्ड रिंग्स विच आर, आपको दो 6 मेंबर्ड रिंग दिख सकते हैं यहाँ पे. I'll just show you. ये एक 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, आपको यहां भी एक 6 मेंबर्ड रिंग दिख सकता है, और इन दोनों 6 मेंबर्ड रिंग को और एक 6 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया. तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है एडमेंटीन. इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एंड एडमेंटीन्स में कायरल एक्सिस कहां पे प्रेजेंट रहता है, विल आल्सो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द एग्जांपल, द फर्स्ट केस व्हिच इज एलीन, एंड एलीन के बाद हम पढ़ेंगे बाइफेनाइल्स. तो एलीन हम बना, अगर मान लो कि ये एक कंपाउंड है CH2, C, this is the second carbon, this is the third carbon, carbon carbon, ये sp2 hybridized रहता है, this is sp and this is sp2. If I try to look at the molecular picture of this particular molecule, तो अगर ये sp2 है तो ये एक प्लेनार फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर हो जाएगा, ये प्लेनार होगा, और इनमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा. दैट मीन्स ओवर हियर वी विल बी यूटिलाइजिंग, सो आप एक सेट ऑफ okay, please do not consider this to be drawn to show symmetry. I'm drawing this just to create a difference between the two. Okay, so this is how this should had been drawn, something like this. ये कुछ ऐसे ड्रॉ होना चाहिए था. Kindly ignore this line. So कुछ इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए था, and that would have created a pi bond. So अगर if I try to look at how the molecule appears, तो इन दोनों
के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा, ये जो टर्मिनल दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, these hydrogens will be shown like this, and this. So these hydrogens will be present in a plane, and the other hydrogens will be present in a plane perpendicular to it. Okay, they'll be present in a plane perpendicular to it. Is that understood? अगर मैंने बाइफिनाइल बनाया तो बाइफिनाइल भी इसी तरह से दिखते हैं। एक जो फिनाइल रिंग है वो एक प्लेन में रहेगा, दूसरा उसके ऑर्थोगोनल वर्टिकल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एलीन्स अ लिटिल बिट मोर। क्या एलीन्स सिर्फ इसी तरह के हो सकते हैं? क्या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं? इट्स पॉसिबल। तो एलीन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑड नंबर्ड एलीन्स, एंड द अदर वन इज एन इवन नंबर्ड एलीन। ओके, नाउ ऑड नंबर्ड एलीन्स एंड इवन नंबर्ड एलीन्स में डिफरेंस क्या है? तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मैंने इवन नंबर्ड एलीन्स लिया तो उनमें जो बॉन्ड्स रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। दिस दे विल, ये एक प्लेन में है और ये दूसरे प्लेन में चला जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवन नंबर्ड एलीन। अगर आपने दो डबल बॉन्ड की जगह चार डबल बॉन्ड ले लिए तो भी सेम अरेंजमेंट ही रहेगा। क्यों? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। सो अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया है, इन दो हाइड्रोजन्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, तो इधर के जो दो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो वर्टिकल प्लेन पे रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड? ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो आने वाले प्लेन्स रहेंगे वो अपने पाई बॉन्ड्स को इसी तरह से रखेंगे। उनका जो मॉलिक्यूलर प्लेन रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसी तरह से चलता रहेगा। ओके, अगर मैंने ऑड नंबर्ड बनाया तो मैं क्या करूंगा? मैं इसी में चेंज करके आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने ऑड नंबर्ड बनाया तो मैं क्या करूंगा कि I'll make a double bond over here, और यहां पे और एक डबल बॉन्ड बना दिया गया। अब ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन will be vertical and this will be again horizontal.
इज दैट क्लियर? सो ऑड नंबर्ड एलीन्स एंड इवन नंबर्ड एलीन्स, दोनों तरह के एलीन्स हमारे पास पॉसिबल हैं. सिमिलरली ऑड बाइफेनाइल्स, इवन बाइफेनाइल्स भी पॉसिबल हैं. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स इज दैट आर ऑल, लेट्स एनालाइज इवन नंबर्ड allenes. Then in even numbered allenes, are all allenes chiral? मतलब अलीन हो गया ही इसको कायरल बोल देंगे क्योंकि कायरल एक्सिस तो प्रेजेंट है. चलो ठीक है, मान लेते कायरल एक्सिस प्रेजेंट है. देन विल आई से दैट कि बिकॉज द कायरल एक्सिस इज प्रेजेंट तो ये कायरल हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं है. तो हम एलीन्स के कुछ कैटेगरीज ले लेते हैं. So I'm taking allenes of this type. Next, okay, fourth. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से एलीन्स कायरल है, और एक और ले लेते हैं. You have to identify which of these allenes are chiral and which of these allenes are not chiral. तो सबसे इजी तरीका है कि आप एलीन बनाओ एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है. तो इस एलीन को बनाते हैं. अगर मैंने इसको इस तरह से बनाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाले को ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाना होगा. यू कैन शो द वन ऑन द राइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और द वन ऑन द लेफ्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने लेफ्ट को हॉरिजॉन्टल में दिखा. तो आपका जो ये प्लेन है ना, दिस प्लेन इज बिकमिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बिकॉज इस प्लेन को एक्सटेंड कर देंगे तो वो बाइसेक्ट कर देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन को. सिमिलरली दिस वन इज बिकमिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट. आपके पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जा रही है, एक भी दिख गया तो वो ए कायरल हो जाएगा. सो दिस इज ए कायरल. So all allenes are not chiral. A lot of people think that all allenes are chiral, but no, all allenes are not chiral. Let's analyze this one. A, C, B. Drawing takes time, so अब बताइए, where do we have a plane of symmetry? हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है भी या नहीं है? सो कैन आई से, अगर मैंने ये वाला प्लेन ले लिया, दिस प्लेन, इफ आई टेक दिस प्लेन, और इस वाले प्लेन को अगर मैंने हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर दिया तो वो ये वाला जो प्लेन है उसको बाइसेक्ट कर देगा. जो वर्टिकल प्लेन है उसको बाइसेक्ट कर देगा इक्वली. ऊपर भी ए, नीचे भी ए आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. लेट्स टेक दिस वन. सो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, सॉरी, ए कायरल. A chiral, and this will be, चलिए देखते हैं. Sorry.
ओके, सबको बना लिया जाए। Okay, and this one will be so I'll highlight those planes where which will function as plane of symmetry, और अगर कहीं पे नहीं हो रहा है तो मैं उसको हाईलाइट नहीं करूंगा। अब चलिए देखते हैं, कैन दिस हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? अगर वर्टिकल लिया तो अगर हॉरिजॉन्टल को बाइसेक्ट किया तो एक तरफ ए दूसरी तरफ बी, हॉरिजॉन्टल ले लिया प्लेन तो वर्टिकल प्लेन को किस तरह से बाइसेक्ट करेगा? ऊपर बी नीचे ए। सो दिस डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री and therefore it is chiral. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ए बी एक्स ए दोनों तरफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS is absent, therefore this is chiral. इस कंपाउंड में ए बी एक्स वाई, ऊपर x नीचे y, इधर b इधर a, दोनों तरफ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS is absent and therefore this is chiral. लेकिन यहां पे आप देखो ए वाला जो प्लेन आपने ले लिया, ए जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर दिया, तो बी वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसको बाइसेक्ट कर दोगे आप इक्वली, एंड देयरफॉर बी वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसको एक्सटेंड कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी बाइसेक्टेड इन टू इक्वल पार्ट्स। सो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, ये भी प्लेन ये प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा बिहेव करेगा, एंड दिस प्लेन विल आल्सो बिहेव एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास हो जा रहे हैं, एक भी हो गया, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। सो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, okay, this is also your plane of symmetry, okay, so in सारे एलिन्स में you will be not observing, so POS is present, therefore it will be achiral. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, अगर आपने इवन, ये तो हमने इवन नंबर ले लिए, तो इवन नंबर में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इवन नंबर्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, इवन नंबर्ड विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड। अगर आपके पास ऑड नंबर्ड है, then if left is horizontal, right will also be horizontal, क्योंकि odd number मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट अगर horizontal है सेकंड वर्टिकल हो जाएगा, थर्ड horizontal हो जाएगा। so you will never be able to observe optical isomerism. odd numbered में आपको हमेशा geometrical isomerism is observed or can be observed. Can be observed. Okay, for example this C B double bond C double bond C double bond C A B, ये जिस प्लेन में प्रेजेंट है
उसी प्लेन में ये भी प्रेजेंट है, and there is restricted rotation about the pi bond, and therefore A and B this looks like cis, और उल्टे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अगर मैंने बाइफिनाइल्स को एसेस किया तो बाइफिनाइल्स में भी सेम रूल सेट्स लगेंगे. ये अगर एक फिनाइल रिंग है and this is another phenyl ring. Okay, let's say ये ग्रुप को मैं A बोल दे रहा हूं, इस ग्रुप को B, इस ग्रुप को X, इस ग्रुप को Y. So if A is equal to B is equal to X which is equal to Y, अगर ये ग्रुप्स फर्स्ट रूल सेट ले लेते हैं, then would we be having plane of symmetry? Answer is yes. And will it be chiral? Answer is no. Next, A is equal to B and X is equal to Y. But A is not equal to X or Y and B is not equal to X or Y. मतलब ये कुछ इस तरह का एक मॉलिक्यूल है. मान लेते हैं Me, Me, and there is Br and there is Br. कुछ ऐसा ले लिया गया. तो where there will it have a plane of symmetry? Yes. And will it be chiral? No. ठीक है. थर्ड ले लेते हैं. A is not equal to B, X is not equal to Y, and A is not equal to X or Y, and B is not equal to X or Y. So ये मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा? कुछ इस तरह का. यहां पे आपने ले लिया मिथाइल, यहां पे ले लिया हाइड्रोजन, यहां पे ले लिया क्लोरीन, यहां पे ले लिया फ्लोरीन. अब ये वाला जो प्लेन, ये जिस प्लेन में प्रेजेंट है और ये जिस प्लेन में प्रेजेंट है, दोनों प्लेन्स अगर आपने एक्सटेंड कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट. एंड विल द मॉलिक्यूल बी कायरल? आंसर इज यस. सो आप मल्टीपल केसेस ले सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि वेदर द बाइफिनाइल विल बी कायरल और नॉट. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू स्पाइरेंस. स्पाइरेंस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं. स्पाइरेंस कैन बी शोन लाइक दिस एज वेल. Let's try and understand this structure. So, to understand this structure, ये structure को भी समझने it's not difficult. इस structure का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. और जो दो दूसरे हाइड्रोजन्स हैं, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस.
okay, which makes this part to be present in a different plane and this part to be present in a different plane. If the observer is me, मैं इनको देख रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ये जो हाइड्रोजन है दिस विल बी towards observer and this will be away from observer. And therefore ये दो different planes में आ गए, so we can interpret it in the same way as allenes. Now whether they will be chiral or not, ये आप मुझे बताओगे. ये एक प्लेन है जिसमें कि ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मींस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इज प्रेजेंट, ओके, एंड दिस इज एन अनदर प्लेन. Just highlighting it slightly differently, okay. So do we have a plane which can bisect the horizontal one or the vertical one into two equal halves? Yes, and therefore this molecule is not chiral. But अगर मैंने इन हाइड्रोजन्स को चेंज करना शुरू किया, just like I made the changes in case of allene, I might arrive at a molecule which will be chiral. An example of that will be this. मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन है और यहां पे मिथाइल है and there is another hydrogen and there is methyl. In this case you will observe that there is no plane of symmetry and the molecule is optically active. ठीक है, इसमें plane of symmetry is absent and the molecule is optically active. So there is the molecule is chiral. But क्या chiral center present है? नहीं, chiral center नहीं present है. अगर मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करते हैं? आपको ये सोचना है कि जो ये लेफ्ट वाला रिंग है that is present in a vertical plane, okay, the right one is present in a horizontal plane. मैं different planes को different color से represent कर दे रहा हूँ. So this is present in a horizontal plane. Again, it is not necessary that left has to be horizontal and right has to be horizontal. It can be different. मतलब आप किसी भी तरह से ले सकते हो. मैंने लेफ्ट को वर्टिकल लेफ्ट वाले रिंग को ले लिया है कि वो वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है. ओके, देन यहां तो हॉरिजॉन्टल प्लेन खत्म हो रहा है, तो इसके बाद जो R एंड R' आएंगे वो कौन से प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन अगेन अ वर्टिकल प्लेन. सो R and R' are present in the vertical plane. Similarly, this A will be now present in a horizontal plane and this B along with this B. ओके, सो इस तरह से चल रहा है. अब बीच वाले जो पार्ट्स हैं
उनको हमें कंसिडर नहीं करना है, टर्मिनल पार्ट्स को एलीन के जैसा कंसिडर करके हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर ये आर आर डैश है और ए बी ए और बी है, देन वी डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये वाला ए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, सो देयरफॉर दिस विल बी शोन बाय अ वेज बॉन्ड, और इसको मैं डैश बॉन्ड से शो कर रहा हूं। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट अ, एंड इसमें जो कायरल एक्सिस होती है वो यहां से पास कर रही होती है। कायरल एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस, दिस इज द कायरल एक्सिस। सिमिलरली पी, यहां पे कायरल एक्सिस वाज पासिंग फ्रॉम हियर। Over here as well, chiral axis is passing like this. Okay. एल्काइलिडीन, साइक्लोएल्केन एंड ऑक्सीन्स में हम क्या करते हैं कि हमने एक एल्काइल ग्रुप लिया और साइक्लोएल्काइल ग्रुप लिया एंड डबल बॉन्ड एंड देयरफॉर लाइक दिस। अब इसको मैं अगर मैं शो करने की कोशिश करूं कि कैसा दिखता है, तो आप देख रहे हो कि ये, सो लेट्स से दिस, आई ड्रॉ एग्जैक्टली दिस. So I will show this to be present in a horizontal plane. This double bond. Let's draw the planes. So the planes will look like this. This is present in a vertical plane. This is present in a horizontal plane. So if this is present in horizontal plane, this will also be present in horizontal plane. This four-membered ring will also be present in horizontal plane. And this double bond part is present in vertical plane. Understood? हमें देखना क्या है, chiral axis कहां से पास कर रहा है. Chiral axis is passing like this, and we do not need to worry about this part or this part. हमें इसको ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है और इस पे ध्यान रखना है. And what would we obtain in this case? Can I say that this plane and this plane extended left, or the horizontal one extended left, vertical one extended right, will not be able to bisect, and therefore plane of symmetry is absent, and whether it is chiral, answer is yes. If I want to draw an oxime like this, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा एक 6 membered ring में. Let's say first let me draw a 6 membered ring. जरूरी नहीं है 6 membered, मैंने 6 membered ले लिया है. यहाँ पे एक मिथाइल दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ OH और ये इसका लोन पेयर, ये ऑक्सीन है. अगर मुझे ये दिखाना है इन दिस फॉर्म टू ड्रॉ प्लेन्स, सो लेट्स से आई ड्रॉ द 6 membered ring इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, there is nitrogen, and the lone pair will go like this.
and OH will go like this, and on this end methyl. Why? Because the plane in which methyl and hydrogens are present and this plane, they are perpendicular to each other. This is horizontal, so this plane will be the one which contains the double bond will be vertical. This will be horizontal once again. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि horizontal मैंने रखा है इसको. Now the choice is completely arbitrary. I can place the ring in vertical plane or the double bond in the vertical plane. So this, it will keep repeating. Okay, so I'm just highlighting the plane. So this is a plane that we are considering, and this is a plane that we are considering for assessing whether it is optically active or not. Lone pair will be treated as a separate group, and therefore can we have a plane of symmetry? Does this look like we have a plane of symmetry? So plane of symmetry is not present. And is it chiral? Answer is yes. इसके मल्टीपल केसेस आप ले सकते हो. मिथाइल नहीं लेके 2 हाइड्रोजन ले सकते हो, तब ये एक chiral हो जाएगा. ओके, और ऑक्सीन में हमेशा एक लोन पेयर और एक OH तो रहना ही है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो, इसी को आप चेंज कर सकते हो. मिथाइल मिथाइल ले लिया और मिथाइल हाइड्रोजन ले लिया. सो मिथाइल मिथाइल लोगे, देन इट विल बी then it will be achiral, and if it is methyl hydrogen it will be chiral. Okay, एडमेंटेन्स को बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है. इस तरीके से, एक ये तरीका है, इसको हम ड्रॉ करना सीख लेते हैं. इसको ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल है. यू ड्रॉ द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. Okay, so you draw the chair form of cyclohexane like this, and then you choose these 3 positions, 1, 3. अगर मैंने एक रिंग लिया तो एक साइक्लोहेक्साइल सिस्टम में अगर ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, 1, 3 पोजीशंस, और यहां से आप इस तरह से बॉन्ड्स क्रिएट करके इस तरह से एडमेंटेन स्ट्रक्चर बना सकते हो. लेकिन आप बोलोगे कि सर पहले जो एडमेंटेन दिखा था वो तो थोड़ा डिफरेंट था. पहले जो एडमेंटेन हमने बनाया था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट. देखो, दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट. तो इस तरह से बनाया आपने. सो व्हाट इज दैट व्हिच इज चेंजिंग ओवर हियर? एक्चुअली चेंज नहीं करना, हमारा आवर पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग. तो एडमेंटेन में कायरल एक्सिस अब 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो. एक तरीका ये है, मेथड 1. मैं यहां पे एक ग्रुप लगाऊं. I put a group over here, put a group over here, and I put a group over here. Okay, I'm just highlighting them so that you'll be able to observe A, B, C, D. और इनको लगाया कहां गया है? जो 3 डिग्री पोजीशंस हैं, ओके, 3 डिग्री सेंटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, वहां पे इनको लगाया गया है. नाउ इफ आई draw an if I extend this backward inside the ring, I draw an imaginary line which projects
from inside the ring and goes like this. Now if I, आप आंख बंद करके इनको अगर ही देखो तो doesn't this look something like this? A, B, C, D. So it looks like there could have been a chiral center connected to 4 different groups. So will it be chiral or not? Answer is yes. This will be chiral. Okay. एक दूसरा तरीका है इनको ऑब्जर्व करने का. फॉर लेट मी जस्ट शो यू. So what you do is you draw an adamantine. Okay, and you choose this position and this one. और यहां पे आप एक ग्रुप लगाइए A, B, और यहां पे एक ग्रुप लगाइए A, B. Okay, made it a little better. So ये 3 डिग्री पोजीशंस आप देख रहे हो. ओके, आपको ये 3 डिग्री पोजीशन, ये दो आप देखिए, ये दो 3 डिग्री पोजीशन के बीच में जो आ रहा है, और यहां पे जो दो 3 डिग्री पोजीशंस है उनके बीच में जो आ रहा है. ओके, एग्जैक्टली दिस पॉइंट and this point. And if you draw an axis from here, and इसको let's say आप इसको नीचे लेके आते हो थोड़ा. ओके, इसको होल्ड किया आपने एंड इसको नीचे लेके आए आप. सो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा. Just a moment. Now let me just show you the points. So these are your 3 degree points. And these are the points about which the chiral axis is going. और यहाँ पे A and B है, तो यहाँ पे इस तरफ A और इस तरफ B. So ये आपका एक प्लेन में अगर रहेगा तो ये एक दूसरे प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे. Okay, again the same assessment can be done whether A and B should be alike, whether A and B should be different, and from there you can make sense of the fact that whether they'll be chiral or not. जैसे कि ये वाला जो सिस्टम है, this system does not have a plane of symmetry, no POS, and therefore it will be chiral.
क्योंकि horizontal plane is not able to bisect the vertical plane equally. Similarly, vertical plane is not able to bisect the horizontal plane symmetrically. Okay, so this is all about molecules with chiral axis, and try to take as many permutations and combinations and try to see how well you have understood this. That's all for today. And जाने से पहले some important messages that the first one is this, that we have already started with our Eklavya program, and so everybody who has appeared for JEE Mains should check out the Telegram channel for the Vedantu JEE Eklavya program, and this Eklavya program will boost your next mains attempt marks and advanced ranks like anything. Also, 2023 aspirants should navigate to this link so as to check all the recent updates, as well as 2024 aspirants. V Impact channel is the one where we are creating a repository of all the amazing questions that have come in the previous years in JEE Advanced and multiple other exams. And so please do check if you have confusion in any questions of previous years. So this is Saurav here signing off, and until the next time, in the next class we will be discussing how to identify absolute configuration in molecules with axial chirality. So bye bye guys, and have a lovely time.